اصل میں گلا میرا کچھ جواب دہ ہوا اس لیے کیونکہ یہ پچھلا ہفتہ جو گزرا ہے یہ جنگ کے اندر گزرا ہے، روحانی جنگ کے اندر، اور خدا نے بڑی فتح بخشی ہے. آپ سب کی دعاؤں کے وسیلے خدا نے بڑا اپنے جلال کو ظاہر کیا ہے. عبادت کے بعد پھر آپ سے گواہی شیئر کریں گے. تو جب جنگ ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر دونوں طرف سے مقابلہ ہوتا ہے. آمین. دونوں طرف سے مقابلہ ہوتا ہے. تو پھر کچھ سپاہی ہونا پہ مارتے نہیں تھے، کچھ اپنے بھی مارتے ہیں. تو ساڈے سپاہی تے نہیں مرے تھے کہ ساڈا گلا بہ گیا. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو بھی میں خداوند کا شکر گزار ہوں، انہی کو آواز نکل رہی ہے کہ خدا کا کلام اسی سنا بھی تو سن بھی سکتے ہیں. ہاللیلویا. سو میرے عزیزو، آج ہم اس بات کو جاننے کو جا رہے ہیں اور سیکھنے کو جا رہے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر، اپنی لائف کے اندر ہر شخص کچھ نہ کچھ پانا چاہتا ہے. آج کے دور کے اندر، آج کے وقت کے اندر ہر شخص کسی نہ کسی چیز یا کسی نہ کسی بات کا متلاشی ہے، اور وہ تلاش کر رہا ہے، وہ جستجو کر رہا ہے کسی نہ کسی چیز کو حاصل کرنے کی. کوئی فائنینشیل اسٹیٹس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور کوئی اپنے گھر کے معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کوئی گھر کی لڑائی جھگڑے سے پریشان ہے، اور کوئی مال و متا سے پریشان ہے، کوئی روزی روزگار کی بندش اور رکاوٹ سے پریشان ہے، کوئی بدارواہوں سے پریشان ہے، کوئی دردوں تکلیفوں اور بیماریوں سے پریشان ہے. آج ہر ایک انسان اپنی اپنی زندگی کے اندر متلاشی ہے اور تلاش کر رہا ہے کسی نہ کسی بات کے لیے، کسی نہ کسی چیز کو اپنی زندگی کے اندر کھوج رہا ہے. جو دن رات وہ کھوجنے میں ٹائم لگاتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کے باوجود اس کو وہ چیز حاصل نہیں ہو پا رہی. میرے عزیزو، بعض اوقات ہم بہت سی دعائیں بھی کرتے ہیں اور دعائیں کرواتے بھی ہیں. بعض اوقات ہم بہت ساری جگہوں پر خدا کے کلام کو بلا کر دعائیں کرواتے اور ان کے ساتھ مل کر کرتے ہیں. لیکن میرے عزیزو، پھر بھی ہماری لائف کے اندر، ہماری زندگیوں کے اندر خدا کی قدرت کام نہیں کرتی. بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ خدا کی قدرت شاید کسی اور کے لیے ہے اور ہمارے لیے نہیں ہے. خدا کی قدرت شاید ان کے لیے کام کرتی ہے جن کی زندگیوں میں بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، لیکن یہ خدا کی قدرت ہمارے لیے نہیں ہے. لیکن میرے عزیزوں، ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. میرے عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک عورت تھی، اور وہ عورت ہر روز ایک کنونشن میں جاتی، اور وہ اس کنونشن میں جب جاتی تو وہاں پر ایک گورا، ایک انگریز آیا ہوا تھا دعا کرنے کے لیے. جس طرح آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے اندر بڑی بڑی مسیحی محفلیں، اجتماع جو ہیں وہ سجائے جاتے ہیں، جیسے YMC گراؤنڈ کے اندر اور مختلف جگہوں پر جب باہر سے انگریز مناد آتے ہیں، اور پھر خدا ان کے وسیلے بڑے بڑے کام کرتے ہیں. آمین. اور ہر روز ایک عورت جو تھی وہ اس کنونشن میں جاتی، اور وہ ہر روز پوری کنونشن میں کھڑی رہ کر دعا کرتی. اس کے ساتھ والے، اس کے پیچھے والے، اس کے آگے والے، کوئی اندھا ٹھیک ہو جاتا، کوئی لنگڑا ٹھیک ہو جاتا، کوئی کچھ صحیح ہو جاتا، کوئی کسی کا کوئی مسئلہ صحیح ہو جاتا، اور وہ بعد میں اس کے پاس سے اٹھ کر، اس کے ساتھ سے نکل کر اوپر اسٹیج پر جاتے اور گواہیاں دیتے. لیکن میرے عزیزو، اس کی زندگی میں گواہی کا کام نہیں ہو رہا تھا، اس کی زندگی میں شفا کا کام نہیں ہو رہا تھا. لیکن میرے عزیزو، یہ عورت جس کی زندگی میں شفا کا کام نہیں ہو رہا، یہ دوسروں کے ساتھ جب گواہی دینے لوگ جاتے تو ان کے ساتھ گواہی دینے چلی جاتی. اور میرے عزیزو، اس ایسی بیماری تھی جو واضح تھی، جو نظر آتی تھی، اور وہ بیماری یہ تھی کہ اس کے گلے کے اندر ٹونسس تھے، اور اس کا گلا جو تھا وہ سوج کر بہت پھول چکا تھا. اب جب ہر بندہ گواہی دے رہا ہے اور کہتا ہے کہ خداوند نے مجھے اندھے سے ٹھیک کر دیا، مجھے لنگڑے سے ٹھیک کر دیا، اور وہ عورت بھی آتی اور وہ کہتی کہ دیکھیں میرا گلا بہت سوجا ہوا تھا، خدا نے مجھے شفا دے دی، ٹھیک کر دیا. اب دیکھنے والے لوگ اور وہ انگریز بھی پریشان اس بات سے کہ بھائی گلا تو ویسے ہی سوجا ہوا ہے، ٹونسس تو ویسے ہی ہے، سویلنگ تو ویسے ہی ہے، یہ کہہ رہی شفا ہو گئی ہے. خیر وہ گواہی دیتے ہی اور چلی گئی.
दूसरे दिन फिर ऐसा ही हुआ, दूसरे दिन फिर वो आई और फिर सबके लिए दुआ हुई और फिर गवाही हुई और फिर वो स्टेज पर चली गई। जब वो स्टेज पर गई तो फिर गला वैसे का वैसा, फिर उसको माइक दिया, फिर कहती है जी मुझे शिफा हो गई है, मैं ठीक हो गई हूँ। सो मेरे अजीजों, जब तीसरा दिन कन्वेंशन का था, जब तीसरे दिन वो स्टेज पर गई तो वाकई ही उसकी वो जो टॉन्सिल और स्वेलिंग थी वो जा चुकी थी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदावंद सब कुछ करने पर कादिर है, लेकिन बाज़ औक़ात हमारी लाइफ में जिस जगह पर हमें स्टैंड लेना चाहिए हम स्टैंड नहीं ले रहे होते। बहुत सारे दूसरे लोग स्टैंड ले लेते हैं जिसकी बाइस वो शिफा और मौजूदा गवाही नसीब कर लेते हैं। मेरे अजीजों, जब उसने 2 दिन कलाम सुना तो कलाम सुनने के बाद उसको पता चला कि शिफा कैसे मिलती है, और तीसरे दिन वो उस स्टेज पर उस मकाम पर खड़ी थी जहां से मौजूदा उसको नसीब हो सकता था। हालेलुया। आज मेरे अजीजों, हम भी बाइबल मुकद्दस में से वो मकाम, वो जगह, वो स्टेज सीखेंगे कि खुदा का कलाम हमें क्या बताता और बयान करता है कि कैसे हम हर चीज के जो अपनी जिंदगियों के अंदर मुतलाशी है, कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ लेना चाहते हैं, तो मेरे अजीजों आज हम उसके बारे में सीखेंगे। सो बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं, आइए मेरे साथ, जिनके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है, पहला करंथियों उसका 13वां बाब और उसकी पहली आयत से मुताला करेंगे। अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं, जी, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं, और फरिश्तों की क्या करूं, क्या करूं, बोलिए, क्या करूं, जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं, और मोहब्बत ना रखूं, तो मैं ठनठनाता पीतल, खाली भांडा है जी, बजाया करी आवाज बहुत आती है कि भरे भांडे की बहुत आती है जी, खाली की बहुत आती है कि भरे की बहुत आती है। खाली बर्तन जो है जब उसके ऊपर चम्मच मारे या कोई चीज मारे तो उसकी आवाज ज्यादा पैदा होती है। आमीन, उसकी आवाज ज्यादा पैदा होती है क्योंकि वो खाली बर्तन है। इसी तरह मेरे अजीजों, जो बर्तन भरा हुआ होता है उसके अंदर से आवाज भी बजाने से कम आती है। आमीन, आमीन। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस इंसान को, थिमोथियस का खत जब हम पढ़ते हैं तो वहां हमें पता चलता है कि हम जो इंसान है, हम खुदा के हाथ का बनाया हुआ बर्तन है। क्या है जी? हम क्या है? हम खुदा के हाथ का बनाया हुआ क्या है? बर्तन है, और खुदा हमारा कुम्हार है, हमारा बनाने वाला है। आमीन। बाइबल मुकद्दस में ये जो बर्तन की बात हो रही है ये मेरे और आपके लिए हो रही है। आमीन, आमीन। लिखा है, अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं, फरिश्तों की जुबानें बोलूं, और मोहब्बत ना, अब आदमियों की जुबानें कौन सी हैं जी? कोई बता सकता है? आदमियों की जुबानें कौन सी हैं? कोई बता सकता है? आदमियों की जुबानें कौन सी हैं? है जी? जो हम हर रोज में बात करते हैं, हर रोजमर्रा की रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। मेरे अजीजों, पूरी दुनिया के अंदर आदमियों की जुबानें 6000 से ज्यादा जुबानें मौजूद हैं। आमीन। जो इंसान बोलते हैं, और उन जबानों के अंदर ये उर्दू जो हम बोलते हैं ये भी आदमियों की जुबान है, अंग्रेजी ये भी आदमियों की जुबान है, लातीनी, फारसी, हिंदको, पश्तो, पंजाबी, सब आदमियों की जुबानें हैं। क्या जी? आदमियों की जुबानें हैं। लिखा है मैं आदमियों और इसके साथ फिर फरिश्तों की जुबानें बोलूं। अब ये फरिश्तों की जुबानें कौन सी हैं? फरिश्तों की जुबानें वो हैं, वो लोग जो गैर जुबानें बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, ये फरिश्तों की जुबानें वो जुबानें हैं जो शख्स गैर जुबानों में दुआ करे, गैर जुबानें बोले, तो असल में ये आसमानी जुबान है। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये आसमानी जुबान नाज़िल कहां से हुई है? कहां से नाज़िल हुई? भाई शागिर्द एक जगह जमा थे ना, तो क्या लिखा है? यका यका आसमान खुल गया और रूह को नाज़िल हुआ और सब पर बेगाना जुबानें। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, ये
बेगाना जुबानें, गैर जुबानें कहाँ की जुबान है? आसमानी जुबान है। मेरे चीजों बहुत सारे लोग कोशिश नहीं करते इस जुबान के लिए, लेकिन सिटीजन ऑफ हेवन जरूर बनना चाहते हैं। है जी, फिरदौस के वासी जरूर बनना चाहते हैं, फिरदौस के शहरी जरूर बनना चाहते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, अगर कोई शख्स यूके जाना चाहता हो या यूरोप जाना चाहता हो या किसी ऐसी इंग्लिश कंट्री के अंदर जाना चाहता हो और वहां पर जाने के लिए उसको एक पेपर देना पड़ता है जिसे आइल्स कहते हैं, और वो जुबान का पेपर है। अगर उसके अंदर उसके नंबर कम आए तो फिर वो उस मुल्क के अंदर जा नहीं सकता। मेरे अजीजों, अगर कोई शख्स, आज इस बात को याद रखिए, अगर कोई शख्स बेगाना जुबानों में दुआ नहीं करता तो ये खुला इशारा है इस बात की तरफ कि वो बेशक रोए जमीन पर बहुत से अच्छे काम करता रहा हो या कर रहा हो, लेकिन वो खुदा की बादशाही में, उस फिरदौस में, उस हेवन, उस जन्नत में जा नहीं सकता जब तक उसको आसमानी जुबान नहीं आती। आमीन। मेरे से तो निकोदेमुस उसके पास आया, यीशु मसीह के पास। उसने कहा मैं क्या करूं कि मैं आसमान की बादशाही में जा सकूं, दाखिल हो सकूं? और क्या अगर तो पानी और रूना पैदा नहीं ना होया कोई बंदा तो आसमान की बादशाही से जाना तो दूर की गल है, वो देख भी नहीं सकता। आमीन। सो मेरे अजीजों, यहाँ पर वो लोग जो हम रोजमर्रा की रूटीन में जुबानों में बात करते हैं वो, और जो गैर जुबानों में हम दुआएं करते हैं वो, हमारे लिए लिखा है कि अगर हमारी जिंदगियों में मोहब्बत का आंसर नहीं है, हमारी मोहब्बत खुदावन के साथ ऐसे नहीं है, हम खुदावन के साथ अटैच नहीं है और हम आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत में कायम नहीं है, तो मेरे अजीजों, हम उस बर्तन की मानिंद है जो बर्तन खाली पड़ता है, जिस बर्तन को बजाने से आवाज बहुत आती है। और मेरे अजीजों, जेड़ा बंदा खाली होता है ना वो बहुत शोर पाता है ना? जेड़ा बंदा खाली हुए, जिसके पास इल्म की कमी हो वो ज्यादा शोर डालता है, जिसके पास अकल की कमी हो वो ज्यादा चोखा लड़न पैदा है, जिसके पास ज्यादा अकल हो और ज्यादा इल्म हो और उसके साथ उसके अंदर मोहब्बत हो तो फिर क्या होता है? वो धीमा होता है, उसका मिजाज धीमा होता है, वो कैर करने में धीमा होता है। और जिसके अंदर इल्म की कमी होती है, जिसके अंदर मोहब्बत की कमी होती है, जिसके अंदर अकल और सीख की कमी होती है, तो हर बंदे खुद को दे पैदा है, हर बंदे ने लड़न पैदा है। इन्हें भी गल कह देती है। मेरे चीजों, बाइबल मुकद्दस में तो लिखा है कि जो तुम्हारे गाल पर एक तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ। हम ये कहने और सुनने की हद तक रखते हैं, अगर कोई मुंह से कुछ कह ही देना हमें तो हम फौरन उसका रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं, फौरन उसका रिप्लाई देते हैं। हम रिप्लाई में डिले नहीं करना चाहते, हम फौरन जवाब देना चाहते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, जो फौरन जवाब देते हैं वो असल में मोहब्बत से खाली है। और मेरे अजीजों, मैं आपको एक क्लियर कट बात बताना चाहता हूं कि मोहब्बत जिंदा खुदावंद यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग बेगाना जुबानें बोलते हो या गैर जुबानों में दुआ करते हो और उनका रवैया भी ऐसा हो, तब भी उनके अंदर यीशु मौजूद नहीं है। ये मत सोचें आप गैर जुबाने बोलते हैं तो आप आसमानी शायरी बन जाएंगे, आप आसमान में चले गए। नहीं, यीशु ने कहा कि जो कोई रूह और पानी से पैदा होगा वो आसमान की बादशाही को सिर्फ देखेगा। जाना माला के नाले होने, जाना कहने माला के नाले होने, नहीं कि पानी का बपतिस्मा ले लिया, रूह से हो गया तो जो मर्जी वन समझ काम करता रहे। नहीं, मेरे चीजों में मुकद्दस में लिखा है कि वो शख्स जो आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलता है और उसके अंदर मोहब्बत नहीं, तो वो क्या है? पढ़िए बेटा। तो अगर मैं आदमी और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झनझनाती झांझ हूं। ठनठनाता पीतल और झनझनाती दफ बजदी देखी किसी ने? है जी, इन्हों बजाओ कदर बेटा, बजाना जरा। हाँ जी, बजाओ। कैसी लग रही है बात? सोरा नहीं लग रही है? मजा आ रहा है? सोना नहीं आ रहा, नहीं आ रहा।
جدو دوسرے سازا نوازیے تو پھر بھر کے والا نہیں ہے، پھر گل ہے ہاللیلویا ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، اگر ہم میں محبت نہیں ہے، ہم آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولتے ہیں، تو ہم خالی برتن کی مانند ہے اگر محبت نہیں ہے، اور جنجناتی جانچ کی مانند ہے جس کا کوئی سلطان نہیں ہے، جس کی کوئی آواز نہیں ہے، اور یوں بے سوری سی لگتی ہے۔ میرے عزیزو، یہ ہماری پھر زندگیاں ہوں گی، اور پھر آگے بڑھتے آگے کیا ہوگا، پڑھیے گا بھائی۔ اور اگر مجھے نبوت ملے اور سب ویدوں کا اور کل علم کی واقفیت ہو، اگر مجھے نبوت ملے، کوئی خادم یا کوئی عام زندگی نبوت کی روح اس پر اترتی ہو اور وہ نبوت کرتا ہو اور ساتھ میں لوٹا اتراندہ بھی ہو۔ میں نے بہت سارے خادموں کو دیکھا ہے، بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، نال دعا کر رہے ہیں، نال عبادت کر رہے ہیں، نال نبوت کی روح اتری ہوئی ہے، نال ہی ڈبر بیٹھا ڈبر بیٹھا۔ میرے عزیزو، یہ خدا کی روح نہیں ہے، یہ خدا کے محبت کی روح نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا کر رہا ہے، بے شک یہ اس کا اور خدا کا معاملہ ہے، لیکن خطرناک بات یہاں پر لکھی ہے، اگر کوئی، پڑھیے، اور اگر مجھے نبوت ملے اور سب ویدوں اور سب ویدوں، جی، اور کل علم کی واقفیت اور کل علم کی واقفیت ہو، اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں، اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ میں پہاڑوں کو میرا علم جو ہے وہ کل علم کی مجھے واقفیت ہو۔ جتنے علوم ہیں دنیا کے اندر، کوئی عالم شخص اگر اس کے پاس یہ ہے، اور میرے عزیزوں اگر اس کے اندر محبت نہیں ہے، اور کوئی خاتم اگر ایسا ہے، کوئی زندگی ایسی ہے، اس کے دعا کرنے کے وسیلے بڑے بڑے کام وقوع میں آتے ہیں، اور میرے عزیزوں اس کے اندر محبت نہیں، وہ محبت سے خالی۔ جی پڑھیے گا۔ اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں، اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ محبت نہ رکھے بندہ کچھ بھی نہیں۔ میرے عزیزوں، ہم اپنے دشمنوں کو معاف کبھی نہیں کرتے، ہم اپنے برا چاہنے والوں کو معاف کبھی نہیں کرتے، بلکہ بدلے کی آگ میں چلتے رہتے ہیں۔ اور میرے عزیزوں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں بدلے کی آگ میں مختلف جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، مختلف اور ٹھکانوں پہ جاتے ہیں، اور پھر اگر کوئی وہاں نہیں جاتا تو موڑ بنا کے رکھتے ہیں۔ انہوں ذرا غصہ سے دکھائیے نا، سانو غصہ آ جائے۔ میرے عزیزوں، بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جو کوئی شخص سرفرازی چاہتا ہے، جو کوئی شخص سرفرازی چاہتا ہے، اور جو کوئی شخص بڑھنا چاہتا ہے، بائبل مقدس میں یسوع نے کہا کہ جو کوئی تم میں بڑا بننا چاہے وہ تم سب کی کیا کرے، خدمت کرے، اور تم سب کا چھوٹا بنے تو آسمان کی بادشاہی میں بڑا کیا جائے گا۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ میرے عزیزوں، آج ہر شخص بڑا بننا چاہتا ہے، آج ہر شخص فیم کے پیچھے بھاگنا ہے، آج ہر شخص مشہور ہونا چاہتا ہے، آج ہر شخص اپنا ظہور و جلال دکھانا چاہتا ہے۔ ہم دعاؤں میں بھلے کہیں کہ خداوند ہم کہتے ہیں تو بڑھے، لیکن جدو آتی ہے نا گل واقعی زندگی سے، تو پھر یسوع نے کہنا ذرا تو بڑا ہوگی نا، ذرا اینوں سے لپٹ آئے گی، ہے نا۔ میرے عزیزوں، یہ ہماری زندگیوں کی اصل مقام اور کہانی ہے، اور پھر ہم بہت کچھ کرتے رہتے ہیں لیکن ہم اپنی زندگیوں میں کچھ پاتے نہیں ہیں۔ جی بھائی آگے پڑھیے گا۔ اور اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں، اور اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں۔ بہت سارے لوگ سخاوت بہت کرتے ہیں، بہت سارے لوگ غریبوں کی مدد بہت کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ کرنے سے آسمان کے دروازے اور برکتوں کے دروازے میرے لیے کھل جائیں گے، لیکن میرے عزیزوں ایسا نہیں ہے۔ جی پڑھیے گا آگے۔ یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں، یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں، اور محبت نہ رکھوں اور محبت نہ رکھو تو مجھے کچھ بھی مجھے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ میں بہت سے اچھے کام کرو، نیکی کے کام کرو، اس کے باوجود اگر محبت نہ رکھو تو مجھے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ آگے پڑھیے گا۔ محبت صابر ہے، محبت صابر ہے، صبر کرتی ہے، اور مہربان ہے۔ محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور بھولتی نہیں، نازیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، نازیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، جھنجھلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے۔ اٹھے سیدھے کام کرنا تو خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی کے کام کرنے سے۔ میری طرف دیکھیے، سب میری طرف دیکھیے،
हुणे मैं पूछ लिया ना किसी को ऐ गल कहने तो पता नहीं लगना कितने गल हो रही थी। जब आप देखेंगे मेरी तरफ ध्यान करेंगे तो सब कुछ आपको हासिल होगा। जी भाई आगे बढ़िएगा। सब कुछ सह लेती है, सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब कुछ यकीन कर लेती है। मेरे से जो मोहब्बत जो है वो क्या करती है? सब कुछ मेरे से जो जिसमें मोहब्बत है वो किसी की बुरी बात को सह लेगा। जिसमें मोहब्बत नहीं है ना वो फौरन रिप्लाई करेगा, और जिसमें मोहब्बत है ना वो ये कह के कह देगा, पीछे हट जाएगा कि इस बंदे दे विच अकल और मोहब्बत की कमी है ही नहीं है। ये कहकर वो सब्र करके पीछे हट जाएगा, क्योंकि शायद वो नहीं जानता लेकिन आप जानते हो कि ऐसा करने से आपकी बरकतें इंक्रीज होंगी और वो बरकतों से खाली होता चला जाएगा। मेरे से तो ये खुदा का कलाम है और खुदा के कलाम की बात है। आज जो लोग बस्ती की हालत में है और सरफराजी नहीं पा रहे, मेरे अजीजों उन्हें अपनी लाइफ में देखने और झांकने की जरूरत है। क्या उनके अंदर ये मोहब्बत है? क्या उनके अंदर ये मोहब्बत जो खुदा हमसे कहता और चाहता है, क्या ये मौजूद है? जी बढ़िए गवाही। और सब बातों की उम्मीद रखी है, सब बातों की बर्दाश्त करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है। मोहब्बत को सवाल नहीं, मोहब्बत को बस्ती जिसमें मोहब्बत है वो सरफराज होगा। हालेलुया। वो नीचे नहीं बल्कि ऊपर को जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और जिसमें घमंड है, जिसमें तकब्बर है, जिसके रवैये दुरुस्त नहीं है, वो दिन ब दिन नीचे जाएगा। वो ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि मोहब्बत को ज़वाल नहीं है। जी आगे पढ़िएगा। नबूवतें हो तो मौकूफ हो जाएंगी, जुबानें हो तो जाती रहेंगी। हाँ जी, गैर जुबानें होंगी तो वो भी बहुत सारे लोग कहते हैं रूल कुछ आ जाता है तो फिर जाता नहीं है। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਠੀਕ है। फिर गैर जुबान रुक जाती है, फिर असी 2 अल्फाज 3 अल्फाज 4 अल्फाज वही बोलते रहते वही केड़ा दे रखते हैं। समझ नहीं आ रही होती कि जुबान बढ़ क्यों नहीं रही। वजह यही है, सबब यही है, जुबान इसलिए नहीं बढ़ रही होती क्योंकि साडे काम ठीक नहीं होते, हम खुदा से दूरी इख्तियार कर चुके होते हैं। जी आगे पढ़िएगा। इल्म हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा इल्म नाकस है, हमारी नबूवत ना तमाम, लेकिन जब काम में जाएगा तो नाकस जाता रहेगा। जब मैं बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता था, बच्चों की सी तबीयत थी, बच्चों की सी समझ थी, लेकिन जब जवान हुआ तो बचपन की बातें करके मेरे चीजों बाइबल मुकद्दस में लिखा, बस इब्तदाई बातों को छोड़कर कमाल की तरफ बढ़ो। हालेलुया, हालेलुया। बस इब्तदाई बातों को छोड़कर हमने कमाल की तरफ बढ़ना है। आज भी हम उन बातों को लेकर बैठे, वो फलाने ने ऐसे कर देता, वो फलानी ने ऐसे कर देता, वो ने वो दिखा देता, वो ने ऐसे कर देता। ये इब्तदाई बातें हैं, ये जो वसीयत में आने से पहले हमारे अंदर होती हैं। मेरे चीजों अगर आज हमें 4-4, 5-5, 6-6 साल 10-10 साल हो गए खुदावत के अंदर और ये सब बातें फिर भी हमारे अंदर हैं, तो फिर याद रखें आप मसीही नहीं, ईसाई हो। ईसाई है, ईसाई मसीही नहीं है। ईसाई वो होते हैं जो नाम नहाद मसीही होते हैं। मसीही वो होते हैं जो अपने कामों से जाहिर करते हैं कि हम मसीह के फॉलोवर हैं, हम उसको मानने वाले हैं, हम उसकी तालीम को अपने दिलों में रखने वाले हैं। लेकिन मेरे अजीजों, अगर हमारे दिल मोहब्बत से खाली है, हमारी जिंदगियां, हमारे घराने खानदान मोहब्बत से खाली है। मेरे अजीजों, मैं आपको एक बात बताऊं, 2 औरतें थी और आपस में बड़ा लड़ती थी। चले 2 औरतें मैं बता ही देता हूं आपको। एक सस सी ते एक नौ सी, वो आपस में बड़ा लड़दियां होंदियां सन। ते नौ जड़ियां ने एक बाबे दे कोल टुर गई। उन्हें कहा अज तो मैं अपनी सस ते ठीक करा। वो टुर गई बाबे दे कोल। बाबे का बड़ा सुनिया सी, बाबा बड़ी करनी वाला, एक ही तमीज मरकाया पलट दे, बाबा बड़ा कुछ कर सकता है। उन्हें जाके बाबा ने दसा, बाबा जी सस बड़ी तंग करती है, लड़ती बहुत है। तो वो तो बेचारी कुछ नहीं कहती होगी, सस ही सारा कुछ करती है। कहता है कोई नहीं पुत्र, एक ही तमीज काम हो जाएगा।
उन्हें कहा ठीक है बाबा जी ने एक रैपर लिया वो कुछ लैना छुड़ा पाइया वो बंद बंद करके उन्होंने दिता। उन्हें कहा पुत्र गल सुन जदों तेरे घर लड़ाई होवे ना इनू ना तू पता की करना है ए दाड़ थले ना रख के जोर ना दबाना है जिवें जिवें तू दबाएगी देखी तेरी सस नूं होर तकलीफ होएगी। कहने लगी बाबा जी यह काम ते यस वो लै गई पुलिस होए वो लड़ाई हुई उन्होंने घर वो लड़ाई हुई उन्हें दंदा थले दब लिया तो मुंह बंद कर लिया हुण बोली जावे दंदा थले घुट्टी जावे। वावा दिन गुजरे आहिस्ता आहिस्ता लड़ाई खत्म हो गई। बाबे दे कोल के कहते बाबा जी तुहाडा तवीर ते बड़ा काम कीता। बाबे ने कहा कितने तवीर दिखा हाँ मैंने कहा यार ये तवीर है तो मैं हर रोज इस्तेमाल करती थी ते हुण साडे कोलों लड़ाई मुक गई है हुण तो सर मेरी सस कुछ कहती नहीं है मैनूं। उन्हें क्या लिया तवीर जो तवीर खोलिया तो लिखे सी 1 2 3 4 5 मेरे सिस्टर जो दंदा थले दबाएगी तो मुंह नहीं खोलेगी जब रिप्लाई नहीं करेगी तो लड़ाई से अपने आप ही मुक जानी। हालेलुया हालेलुया। मेरे सिस्टर जब किसी की जिंदगी में मोहब्बत होगी और फिर वो रिप्लाई नहीं करेगा तो फिर लड़ाई से अपने आप ही मुक जानी। हालेलुया हालेलुया। मेरे सिस्टर यही तो मसला है यही तो परेशानी है जिसकी बायस हम परेशान रहते हैं और दुख उठाते रहते हैं तकलीफ उठाते रहते हैं। आज घर घर की कहानी बन चुकी है आज हर घर की कहानी बन चुकी है। मेरे अजीजों आज हमें जरूरत है कि अपने दिलों के अंदर इस मोहब्बत को उजागर करें। तो ये दिल लोड़ नहीं पड़ेगी किसी को पुठा सीधा करने की लोड़ नहीं पड़ेगी बल्कि मसला आपका हल हो जाएगा जब आपके अंदर मोहब्बत होगी। जब आपके अंदर मोहब्बत होगी तो आपकी जिंदगी परवान चढ़ना शुरू हो जाएगी। जब आपकी जिंदगियों के अंदर मोहब्बत होगी तो आप खुदा के जलाल में बढ़ना शुरू हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया। पढ़िएगा भाई आगे। अब हमको आईना में धुंधला सा दिखाई देता है। बस हमें इब्तदाई बातों को छोड़ देना चाहिए और कमाल की बातों की तरफ। अब हम रूहानी तौर पर जवान हैं तो जवान जब हो जाता है तो उसको अकल समझ आ जाती है और अच्छे तरीके से वो अकल का इस्तेमाल करता है। लेकिन जब वो छोटा बच्चा था तो उसको पता नहीं चलता वो क्या कर रहे हैं। आज हम जवान हैं तो हम अपने आप का अपनी अकल का अपने ज़हन का सही तरीके से इस्तेमाल करें और खुदा की मोहब्बत को अपने दिलों में रखें ताकि हम बच्चे की समझ और बूझ में ना रहे बल्कि हम जवान की समझ बूझ में आ जाए। जी भाई पढ़िएगा। इस वक्त मेरा इल्म नाकिस है। तेरहवीं से पढ़ दीजिए भाई। गर्ज ईमान उम्मीद मोहब्बत ये तीनों दायमी है मगर अफसर इनमें मोहब्बत। गर्ज ईमान जो हर इंसान रखता है ईमान रख कर क्या करता है उम्मीद करता है। क्या करता है वो कहता है कि मेरा ईमान है कि खुदावंद ने हुजूरों में तो शिफा मिल जाएगी। ये जो शिफा मिल जाने वाला कॉन्सेप्ट है उसकी उम्मीद है। ईमान वो क्या रख रहा है कि खुदावंद उसे शिफा और उस बात की ईमान रखकर खुदावंद पर उम्मीद कर लेता है कि खुदावंद मुझे ठीक करेगा। बाइबल मुकद्दस में लिखा है गर्ज ईमान उम्मीद और फिर इसके साथ मोहब्बत। ये तीन चीजें एक साथ काम करती हैं। मेरे अजीजों अगर आप ईमान रखते हैं और उम्मीद रखते हैं कि खुदावंद आपको शिफा देगा आपको बरोमंद करेगा आपकी ब्लेसिंग को जारी करेगा और अगर तीसरी चीज आपके अंदर मोहब्बत नहीं है तो इन दो चीजों से आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। हासिल नहीं होगा कुछ भी आप खाली रहेंगे। जब ईमान उम्मीद के साथ मोहब्बत होगी तो फिर आपकी लाइफ में जो आप चाहते हैं नसीब करना वो आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। मेरे अजीजों मोहब्बत कौन है मोहब्बत कौन है। मेरे अजीजों एक जगह पर एक वक्त एक टाइम में एक जगह का बादशाह था और उसने अपनी रियाया को ऐलान किया कि भाई जिसको जो कुछ महल में से चाहिए वो ले जावे। सुबह से लेकर शाम तक का वक्त है जिसको जो कुछ महल में से चाहिए वो सारा कुछ ले जावे। सो हुआ मेरे चीजों ऐसा कि लोग की दड़ आई जान और महल दे विच समझ लो अजकल का महल से फ्रिजा भी पईयां सन डी फ्रीजर भी ते टीवियां भी पईयां सन जिवें कोई सुरमा वाली दी दुकान सी। सो बंदा आ रहा है फ्रिज नूं जप्पा मारदा है वो अपने घर लै जांदा है टीवी चुकदा है वो अपने घर लै जांदा है और जो सी चीज चाहिए वो सारा कुछ गड्डी जिन्होंने चाहिए गड्डी अपने घर लै जाता है। एक बंदा खड़ा होया सारा माजरा देख रहा है और एक जो बादशाह जिन्हें ऐलान किया वो भी दूजे पासे खड़ा होकर माजरा देख रहा है। तो बंदा बड़ा अकलमंद सी जो वो बादशाह को देख रहा सी। लोग सारे दूसरिया शहरों जब्बे मार रहे हैं मार मार के अपने घर लैके जा रहे हैं
وہ بندہ آیا تو انہیں بادشاہ کو جفا ماریا بادشاہ نے پوچھا ہے کی کر رہے ہیں انہوں نے کہا میں بادشاہ کو اپنے گھر لے چلیا جس سے بادشاہ ہوئے گا اتنے گڈیاں تے ساری شہواں آپ ہی آ جان گیا ہالےلویا ہالےلویا میرے عزیزو آج یسوع کو اپنے گھروں میں اپنی زندگیوں میں خوشامد کیجئے یہ سب چیزیں جو آپ چاہتے ہیں جس کی جستجو آپ کرتے ہیں جس کے لیے کاوشیں آپ کرتی ہیں آپ کو نصیب ہو جائیں گے آئیے ہم اپنے سروں کو جھکاتے اور اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں خدا آپ کو تھینک یو لارڈ آئیے